ایک 19 سالہ نوجوان فیصلآباد کی سڑکیں اور تقدیر کا ایک ایسا انوکھا کھیل جس نے چند ہی دنوں میں اسے کئی رازوں کا امین بنا دیا۔ کالج کی وہ خوبصورت افسرہ جس کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ کسی اور ہی گلی میں جا نکلا، اور سبز منڈی کا وہ سچ جس نے ایک معصوم لڑکی کا پردہ فاش کر دیا۔ آخر کیا ہوا جب قسمت ایک ہی وقت میں اتنی مہربان ہوئی؟ چلیے سنتے ہیں زین کی زبانی۔ فیصل آباد کے رخ پر لکھی گئی ایک سچی، منچلی اور تجسس سے بھرپور داستان۔ میرا نام زین ہے، میری عمر 19 سال ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا جگری یار حارث ملتان گیا ہوا تھا۔ میں کافی بور رہتا تھا، سوچا دوبارہ سے کالج جانا شروع کرتا ہوں۔ ہمارا کالج سرکاری کالج تھا، وہاں جاؤ نہ جاؤ ایک برابر تھا۔ سمار کے دن کالج کے لیے تیار ہوا، 2 گھنٹے پہلے ہی کالج کے لیے نکل پڑا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کالج اتنی جلدی جا رہا تھا۔ کالج پہنچا تو پتہ چلا کہ کالج تو 8 بجے لگتا ہے اور میں صبح 6 بجے ہی پہنچ چکا تھا۔ تو سوچا کیوں نہ ساتھ ہی وزیر اعظم پارک ہے، اور سننے کو ملتا تھا کہ وہاں بہت سی حور پریاں اپنی حاضری دیتی ہیں۔ واک اور ورزش کے لیے تو ہم بھی نکل گئے پارک کی طرف۔ 5 منٹ میں ہم پارک پہنچ گئے، لیکن پہلا دن پارک کا ماحول اور کالج یونیفارم میں بہت عجیب لگ رہا تھا، تو میں ایک سائیڈ پر جا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں موبائل استعمال کرتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2-3 لوگوں نے پوچھ لیا کہ آپ کالج چھوڑ کر باہر بیٹھے ہیں۔ ان کو بتانا پڑا کہ کالج لیٹ لگتا ہے اور میں جلدی آ گیا۔ ایسے ہی موبائل چلاتے چلاتے میرا کالج ٹائم ہو گیا، اور جب کالج پہنچا تو دیکھا کچھ دوست ابھی آئے ہوئے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور ان دوستوں کے ساتھ مل کر پہلا پیریڈ پڑھا، کیونکہ پہلا پیریڈ ہماری بہت ہی خوبصورت میڈم کا تھا۔ کالج میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ میڈم کی عمر تقریباً 27 یا 28 سال ہوگی، اور وہ ہمیں فزکس پڑھاتی تھی۔ ہم میں سے کبھی بھی اگر کوئی کالج جاتا تو میڈم کا لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میڈم آئی تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ میڈم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر 45 منٹ کا پیریڈ ایسے لگا جیسے 5 منٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ آخر میں میڈم نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنکھیں اور منہ پھاڑے بیٹھے نہ رہا کرو، کچھ پڑھ بھی لیا کرو۔ میڈم غصے میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میڈم کا لیکچر لیا تو اگلا مجبوراً لینا پڑا، کیونکہ پروفیسر صاحب پہلے ہی آ چکے تھے۔ ان کے 45 منٹ گزرے اور جیسے ہی بیل بجی ہم سب جلدی سے باہر نکلے۔ ہم سب کالج سے نکلتے ہی ستارہ چوک پہنچ چکے تھے۔ ستارہ چوک اسے کہا جاتا تھا جہاں ہر وقت حسنائیں موجود ہوتی تھیں۔ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر نکل گئے دوسرے چوک کی طرف۔ وہاں ہمیں پہلی دفعہ ملی ایک خوبصورت سی معصوم سی لڑکی، جسے دیکھتے ہی ہم سب کھو گئے۔ وہ تھی تو 3 لڑکیاں، ایک لمبی، ایک درمیانی اور ایک چھوٹے قد کی۔ جو لمبی تھی وہ سانولے سے رنگ کی تھی اور اس کی عمر تقریباً 21 سال ہوگی۔ پھر درمیانی لڑکی جسے دیکھ کر میں مدہوش کھڑا تھا، اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس نے اسمائل پاس کی تو میں حیران ہی ہو گیا کہ مجھے بھی کیا اتنی خوبصورت لڑکی اسمائل پاس کر سکتی ہے، یا پھر وہ میرے پاگل پن پر اسمائل پاس کر رہی ہے۔ خیر وہ آگے نکلی اور میں ان کے پیچھے۔ وہ کچھ آگے جا کر واپس مڑی، میں بھی واپس کو ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی آگے گئی ہوں گی کہ پھر واپس مڑی اور ہمیں اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ہنس پڑی۔ سیدھا بولنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی نہ اس افسرہ میں۔ یہی تھی وہ کالج کی افسرہ۔ تیسرے چکر پر ہم کنٹین چلے گئے اور تھوڑی دیر میں وہ بھی کنٹین کے سامنے گراؤنڈ میں آ گئی۔ میں نے پھر پیچھے کیا اور بات ایسے سٹارٹ کی کہ میں اپنے دوست سے اونچی آواز میں بولتا اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی اور ہنستی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے ہمیں چلاتے چلاتے زولوجی ڈپارٹمنٹ تک لے گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ دوستوں نے کہا اب ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو میں نے کہا اب تم جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ میں 30 منٹ وہاں گھوما، پھر واپس جانے کے لیے جہاں انہیں چھوڑا تھا وہیں سے گزرنے لگا تو وہ پھر وہیں مل گئی۔ اب کی بار انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی اور کالج گیٹ کی طرف جانے لگی۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ وہ اب گھر جا رہی ہیں۔ میں بھی بھاگا اور اپنی بائک نکالی اور اپنے بوائز گیٹ سے نکل کر ان کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ کہیں وہ نکل نہ گئی ہو۔ میں نے کالج کے ساتھ والی سڑک پر بائک دوڑائی مگر کچھ نہیں ملا۔ پھر دوسری سائیڈ بائک دوڑائی مگر ادھر بھی کچھ نہیں تھا۔ آخر امید کے ساتھ کالج گیٹ پر پہنچا تو ماسک پہنے ایک لڑکی رکشے میں بیٹھی تھی
اور وہ رکشہ میرے سامنے سے نکلا اور وہ لڑکی کافی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بائک موڑی اور رکشے سے تھوڑے سے فاصلے پر بھگا دی۔ وہ اگلے چوک پر پہنچ گئی اور دائیں سائیڈ ایک سڑک پر چڑھ گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے میرے ایک پرانے دوست حارث کے گھر کی طرف رکشہ موڑا۔ میں نے ان کو کراس کرتے ہوئے 2-3 گلیاں مڑ کر اپنے دوستوں کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے لگا تو صحیح کہ وہ پیچھے سے ہی کسی اور گلی میں نہ چلی جائے، مگر آج میں بھی حیران تھا کہ قسمت اتنا ساتھ دے رہی ہے۔ 3-4 دفعہ اتفاقاً کالج میں ملا، اب گھر تک پہنچا رہی ہے۔ پھر میں نے دوست کے گھر کا دروازہ بجایا۔ دوست کے والد صاحب نکلے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہے حارث، تو انہوں نے بتایا کہ وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں رکشہ اس گلی میں داخل ہوا اور اب تو اس کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں۔ وہ بالکل حیران تھی۔ پورا راستہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اچانک مجھے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے بھی اب زیادہ آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، وہیں سے واپس گھر کو چل دیا۔ سوچا کہ اب کل ہی دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ افسرہ کا رکشہ آگے نکلنے کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ اس راستے میں ایک منڈی تھی۔ مجھے خیال آیا کیوں نہ آج اپنی مرضی کی کوئی سبزی گھر لے جاؤں۔ سبز منڈی داخل ہوا، بائک سائڈ پر لگائی اور سبزی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سبزی لی اور بائک نکال کر گھر کی طرف بھگا دی اور راستے میں آہستہ آہستہ مزہ کرتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر جا کر سبزی ایک سائڈ پر رکھی اور چپ کر کے سو گیا۔ میں 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے سویا ہوا ہوں گا کہ الارم بج گیا۔ میں فوراً اٹھا، نہایا اور بچوں کو پڑھانے نکل گیا۔ شام کو فارغ ہوا اور پھر سوچنے بیٹھ گیا کہ آج اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ قسمت اتنی مہربان ہو گئی اور ایسے ایسے کام میرے ساتھ ہو گئے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھ میں کسی کو دیکھنے کی کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو میں فوراً آنکھیں نیچے کر لیتا تھا۔ میں نے اپنے جگری دوست کو فون کیا اور اسے مکمل کہانی تفصیل سے بتائی۔ مجھے بات کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اسے بس کرنے کا کہا اور فون کاٹ دیا، اور پھر سوچنے لگا کہ صبح کالج والی افسرہ کیا کہے گی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ گیا، کہیں مجھے ہی کوئی کھری کھری نہ سنا دے۔ لیکن وہ تھی من موجی، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ آج کیا ہوا ہے، اور میں اسے سمجھتے ہوئے کسی اور لڑکی کے پیچھے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں پھر 6 بجے سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ مجھے کالج کی افسرہ کی یاد آئی تو فوراً کالج کے لیے تیار ہونا شروع کر دیا اور تیار ہو کر کالج کے لیے نکل پڑا۔ راستوں میں رکشوں کو دیکھتے دیکھتے مزے کرتا میں کالج جانے کے بجائے ڈائریکٹ پارک پہنچ گیا، اور پارک میں اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک گراؤنڈ ہے۔ بس وہاں دیکھا تو وہاں کئی آنٹیاں اور کئی لڑکیاں بیٹھی تھی۔ میں نے ان سب کو دیکھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی، حسن کی پریاں۔ ابھی ان سے نظر ہٹا کر سڑک کی طرف دیکھا تو سامنے بھی کئی لڑکیاں سڑک پر واک کر رہی تھی، مگر زیادہ تر پھولوں کے ساتھ کانٹے یعنی کہ مرد بھی موجود تھے، اس لیے ایسے پھولوں اور حسناؤں کو نہ دیکھنا ہی مناسب تھا۔ سڑک پر دیکھتے ہی دیکھتے میں کل والے بینچ تک پہنچ گیا، مگر آج وہاں 2 لڑکے ایکسرسائز کر رہے تھے تو سوچا کیوں نہ میں بھی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لوں۔ میں اسے پہلے 6 مہینے جم کر چکا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت ایکسرسائز کی اور پھر نکل لیے کالج کی طرف۔ راستے میں جتنے رکشے دیکھے جا سکتے تھے دیکھے اور پہنچ گیا کالج گیٹ پر، لیکن کالج گیٹ ابھی اوپن نہیں ہوا تھا۔ دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اسے آفر کی کہ چل کچھ وقت گھوم کر آتے ہیں، لیکن اس نے منع کر دیا تو میں بھی بائک سے اترا، بائک سائڈ پر لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں جہاں کھڑا تھا وہیں ایک رکشہ آ کر رکا۔ اس میں پیچھے 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں، کالج گرلز، اور ڈرائیور ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ وہ اتر کر ایک سائڈ والی گلی میں چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ بابا روز اسی ٹائم یہاں آ کر رکشہ روکتا ہے اور مزید 3 لڑکیوں کو بلانے جاتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شریف صاحب میرے ساتھ کیوں نہیں جا رہے تھے۔ یہ 3 لڑکیاں 20 یا 22 سال کی تھیں اور خوبصورت بھی۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے تو وہ معصومانہ اور پیارے تھے۔ اتنی دیر میں مزید 3 لڑکیاں اور آ گئی۔ پہلے والی لڑکیوں کی نسبت یہ 3 تھوڑی کم عمر کی تھی، 19 یا 20 سال کی ہوں گی۔ وہ تینوں آگے بیٹھ گئی۔ جب رکشہ نکلنے لگا تو پیچھے کی ایک لڑکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے دوسری سے کچھ بات کہی اور دیکھتے ہی دیکھتے رکشہ سڑک پر مڑ گیا۔ ادھر جونیئر نے ہی مجھے بلایا، بھائی کالج کھل گیا ہے۔ میں نے بھی کہا تو چل میں آتا ہوں۔ بائک لے کر کالج میں داخل ہوا
और कॉलेज की पिछली साइड पर पहुंच गया। वहां ज्यादातर बेंच बने होते हैं, वहां बैठ गया। थोड़ा बहुत सोचा कि आज अफसरा से कैसे मिलना है। फिर ख्याल आया कि कल वो तीसरे पीरियड में मिली थी, तो आज 2 पीरियड ले लेते हैं और तीसरे में सतारा चौक जाकर देख लेंगे। पहला पीरियड अपनी क्रश का लिया, मतलब मेरी मैडम फिजिक्स की। प्रोफेसर इंतहाई खूबसूरत लड़की, मैं बस इसे देखने में खोया रहा। इसकी मोटी मोटी आंखें, क्या ही खूबसूरत प्रोफेसर थी। बस उसकी खूबसूरती के तराने दिल में गाते गाते पता ही नहीं चला कि पीरियड फिर से ख़त्म हो गया और अगला पीरियड शुरू हुआ। जब आधा होने के करीब था तो मेरी बाहर नज़र पड़ी। 3 लड़कियां, जिसमें अफसरा भी होती थीं, वो नज़र आई। उसका हमें पता ऐसे चलता था कि लास्ट वाली का कद काफ़ी छोटा था और वो होती भी उनके साथ थी, तो उससे हमें पता चल जाता था कि वही जा रही है। अब आधा पीरियड हुआ था, ना मैं बाहर निकल सकता था ना कुछ और कर सकता था। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। जैसे तैसे करके पीरियड ख़त्म हुआ। मैं बाहर निकला, दोस्तों को इकट्ठा किया और निकल लिए। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि अभी नज़र आई थी मुझे। इसमें मेरे एक और दोस्त ने मेरी हमायत कर दी कि हाँ, मुझे भी नज़र आई थी, वो छोटे कद वाली। उसके साथ 2 और भी थी। हम बातें करते करते पार्क में पहुंच गए। वहां हमें कुछ न मिला। हम थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कंटीन की तरफ चल दिए। फिर हम सब कंटीन से भागकर लंबा चक्कर काटा और कॉलेज के दरमियान में पहुंच गए। इतने में एक दोस्त बोला, वो देखो अफसरा जा रही है। हमें सांस भी चढ़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और देखा तो जनाब अफसरा और लंबी लड़की, वो दोनों कंटीन की तरफ ही जा रही थी। फिर हम उनके पीछे हो लिए। वो कंटीन के सामने वाले ग्राउंड में जाने लगी तो लंबी लड़की ने हमें देखा, पीछे मुड़कर और अंदर चली गई। हम भी बैठ गए उनके इंतज़ार में कि पता नहीं कब निकलती हैं वहाँ से। कुछ हिस्सा नज़र तो आता था ग्राउंड का, मगर कुछ नहीं आता था। जहाँ आता था वहाँ इन्होंने 3-4 चक्कर लगाए, जैसे वॉक कर रही हूँ। थोड़ी देर हुई कि मुझे नज़र आया कि छोटी लड़की बाहर निकल रही है। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो उठो, छोटी निकल रही है। अगर ये है तो बाकी दोनों भी साथ होंगी। हम सब खड़े ही थे। इतनी देर में वो ग्राउंड से निकली और उस मर्तबा छोटी ने यकीन दिला दिया। वो ऐसे कि उसने ग्रुप चेंज किया हुआ था। मुझे उनके स्कार्फ से पता चल गया। अफसरा का स्कार्फ ग्रीन था, मगर अब वो जिनके साथ थी उनका स्कार्फ भी रेड था, और वो थी भी थोड़ी बड़ी बड़ी लड़कियां। फिर पीछे से ग्राउंड में से 2 लड़कियां निकली, ग्रीन स्कार्फ वाली। मैं देखते ही समझ गया कि यही अफसरा है, और अफसरा ने मेरी तरफ देखा। एक दफ़ा तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में मेरी आंखें थीं, लेकिन ये क्या, कल जिसका मैंने रिक्शे में पीछा किया था उसकी आंखें तो और थीं, ये नहीं थीं। मतलब वो कोई और थी। मैंने वही सोचा, पूरा रास्ता उसने पीछे क्यों नहीं देखा, और अफसरा ने गुस्सा क्यों नहीं किया, अब कुछ बोली क्यों नहीं। पता नहीं बेचारी वो कौन थी जिसको उसकी गली तक जाकर, जाहिर सी बात है, मैंने वैसे ही डरा दिया होगा। अच्छा दफ़ा करो, अब क्या ही किया जा सकता है सिवाय अफसोस करने के। तो अफसोस करते करते हम चल पड़े अफसरा के पीछे पीछे। अब फिर अफसरा ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट जा रही थी। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट तक अफसरा का पीछा किया। वो पीछे देखे बगैर डिपार्टमेंट में चली गई। हम दोस्तों ने आधा घंटा कॉलेज के बाहर गुजारा, खाना वगैरह खाया और फिर आगे कॉलेज वापस। बाकी सब लेक्चर लेने चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त रह गए। थोड़ी देर वेट किया। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के पास तो वो आ गई जिसका इंतज़ार था। अब फिर वो गेट की तरफ जाने लगी और फिर से पीछे मुड़ मुड़ कर देख ही रही थी। मैंने दोस्त को कहा कि यार, मैं बाइक निकाल रहा हूँ तो नज़र रख। मैंने बाइक निकाली और हम बाहर निकल गए, लेकिन वो नहीं निकली। काफ़ी देर इंतज़ार किया, कुछ हसनाएं देखी, मगर वो नहीं निकली। हम थक कर अंदर गए तो देखा वो गेट की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से आ रही थी। मतलब इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। हम थे ही बेवकूफ़। फिर हम इनके पास से गुजरे और बिना देखे आगे चले गए। एक चक्कर काटा कॉलेज में और बाहर निकल गए। गर्ल्स गेट के पास एक दही बल्ले वाला खड़ा था। सोचा खाते भी हैं और देखते भी हैं। तकरीबन हमें बैठे 10 मिनट हुए होंगे कि कॉलेज से एक रिक्शा निकला जिसमें 2 लड़कियां थीं, ग्रीन स्कार्फ वाली। इन दोनों से हंसकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। मैंने दोस्त को कहा कि ये वही है, तो दोस्त ने कहा नहीं, ये वो नहीं है। मैंने कहा आखिर तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि ये वो नहीं है? तो दोस्त ने कहा यार, असल में जो लंबे वाली लड़की थी ना,
वो सांवली सी लड़की, यार वो मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं उसको नहीं भूल सकता। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या मजनू साहब हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा मजनू साहब जो भी है ना, लेकिन दरमियानी लड़की वही थी। मेरे दोस्त ने कहा दरमियानी मैंने नहीं देखी, तो मैंने कहा लंबी मैंने नहीं देखी। हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि एक लड़की कॉलेज से पैदल निकली और सामने रिक्शे में बैठ गई, तो मेरा दोस्त कहने लगा ये देख, ये है वो सांवली। वो सांवली लड़की रिक्शे में बैठी तो उसकी नज़र सामने पड़ी जहां हम बैठे थे। वो काफ़ी देर हमें देखती रही। दोस्त ने भी देखा। फिर थक कर हम वहां से उठ खड़े हुए और सब्ज़ मंडी वाले रास्ते से घर चल दिए। आज भी सोच तो हम कुछ ऐसा ही रहे थे कि सब्ज़ मंडी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सब्ज़ मंडी पहुंचे और बाइक चलाते चलाते ही हूरे देखने लगे। सब एक से बढ़कर एक थी। हम काफ़ी देर वहां रुके रहे और फिर घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर जाते ही सो गया। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंच गया और आज मैं पूरे टाइम पर ही गया था। कॉलेज में 2-4 लेक्चर लिए और बाहर निकल आया। खाना खाया, टाइम बाहर गुजारा कुछ और फिर अकेला ही सब्ज़ मंडी चला गया। आज एक जगह अच्छा खासा रश लगा हुआ था। आदमी औरतें सब भीड़ में शामिल थी। मैं भी देखने को बढ़ गया। वहां पर आटा मिल रहा था सस्ता। मैं भी वहां रुक गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी नज़र एक आंटी पर पड़ी। इस आंटी ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि प्रिंटेड था। आंटी की उम्र कोई 30 या 31 साल थी और आंटी के आगे एक लड़की खड़ी थी जो आगे आटे की तरफ ही मुतवज्जो थी। कुछ देर पहले तक तो आंटी भी आटे की तरफ ही देख रही थी, मगर अब वो मेरी तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बाद आंटी के आगे जो लड़की खड़ी थी वो पीछे मुड़ी और कहा कि अम्मा आटा ख़त्म हो गया है, अब सुबह ही मिलेगा। वो लड़की मास्क में थी और आंखें बहुत खूबसूरत थी और उम्र 20-21 साल के दरमियान में होगी। आंटी पीछे की तरफ पलटी और बाहर को चल दी। पीछे पीछे वो लड़की भी चल रही थी और वो दोनों चली गई। कुछ देर मैंने वहाँ का जायज़ा लिया, फिर घर पहुँच गया कि सुबह टाइम से कॉलेज आ जाऊँगा। मगर घर जाकर जब सोया तो जहन फ्रेश हुआ और याद आया कि सुबह तो इतवार है, मतलब कॉलेज से छुट्टी है। फिर सोचने लगा कि क्या करूं, सुबह कैसे जाऊं। फिर यही सोचा कि सुबह फरमाबरदार बच्चा बनकर घर वालों की सब्जी लेने सब्ज़ मंडी जाऊंगा। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि घर वालों ने कहा कि घर में वेला रहता है, कोई काम काज ढूंढ। साथ साथ तो मुझे याद आया कि रात का कोई काम काज देखते हैं। वैसे भी रात देर तक जागता हूँ, तो चलो कोई काम ही कर लेंगे। फिर दोस्तों से बात की कॉल पर, उनसे पूछा कि रात का क्या काम काज किया जाए, तो ज़्यादा दोस्तों ने ऑनलाइन काम का कहा। मैंने भी सोच लिया कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन काम भी शुरू करते हैं। इसके बाद कॉल की जिगरी यार हारिस को। इसे पूछा कहाँ है, तो दोस्त बोला कैमला में हूँ। मैंने कहा तो पागल, बताया ही नहीं तो आ रहा है। दोस्त बोला अब बता दिया ना, चल आजा लेने अड्डे पर। मैंने कहा बहुत अच्छे मेरी जान। दोस्त बोला रुक जा अभी अड्डे पर पहुंचने दे, फिर कॉल करता हूं। मैंने कहा ठीक है जल्दी करे कॉल। दोस्त बोला अच्छा हौसला रख। मैं अब बड़ा खुश था कि चलो अब जिगरी यार है साथ, अब तो दिन रात घूमेंगे। मैंने रुकने की बजाय बाइक निकाली और बस स्टैंड की तरफ निकल गया। रास्ते में क्या देखा क्या नहीं मैंने कोई गौर नहीं किया। मुझे तो सिर्फ अपने यार से मिलने की जल्दी थी। मैं बाइक को भगाते हुए बस स्टैंड पहुंचा और वहां यार का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद इंतज़ार ख़त्म हो गया। मेरे जिगरी यार ने कॉल की। मैंने कहा कहाँ है। यार बोला बस ने पीछे स्टॉप पर उतार दिया, अड्डे पर नहीं गया। मैंने कहा मैं यार अड्डे पर पहुंचा हुआ था, कोई नहीं तू 2 मिनट सब्र कर, मैं आया। बस फिर लटके हुए मुंह के साथ बाइक निकाली और लास्ट स्टॉप पर पहुंचा। इसे देखते ही सारी परेशानियां दूर हो गई। इसे गले लगाया और तकरीबन 1-2 मिनट गले ही लगे रहे। मेरी आंखें नम हो गई थी खुशी से। इसे कहा यार बड़ी मुश्किल से तेरे बगैर दिन गुजरे, अब पकड़ चाबी और चला बाइक को। वो थका हुआ था मगर बोला कुछ नहीं। चुप करके चाबी पकड़ी और बाइक चलानी शुरू कर दी। इस टाइम बस हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसके घर पहुंचे। मैंने भी उसको थका देकर इसे जाने दिया, लेकिन घंटे बाद ही जब दिल ना लगा तो कॉल की और वो जनाब भी बाहर निकल पड़े। हम बाजार का चक्कर लगाने गए। तकरीबन 11 बज चुके थे। बाजार में रौनक बिल्कुल कम थी, दुकानें बंद होती जा रही थी। बाजार का मुकम्मल चक्कर काटने के बाद रोड पर निकले और कुछ 2-4 लड़कियों को देखा और हंसते मुस्कुराते घर पहुंच गए। सुबह इतवार थी। 10 बजे उठा
घर वालों को सब्जी का कहा कि सब्ज़ मंडी से ले आता हूँ। इन्होंने मना कर दिया कि इस टाइम तो बासी सब्जी ही मिलनी है, तो यहीं से ले दो। बुरा सा मुंह बनाया, करीब से सब्जी ले ली और सोचा अब सब्ज़ मंडी कैसे जाऊं। तो याद आया कि मेरा हजाम सब्ज़ मंडी के करीब है। घर वालों से इजाज़त ली कि बाल कटवा कर आता हूँ और चल दिया। सब्ज़ मंडी की तरफ रास्ते में कुछ खास नज़र नहीं आया। सब्जी मंडी पहुंचा ही था कि आटे की तरफ कल से भी ज़्यादा रश था। अब मैं इस रश में इस आंटी को ढूंढने लग गया। वो आंटी तो नज़र न आई, मगर उसकी बेटी यहीं थी और वो सबसे आगे थी। उसने आज भी मास्क और बुर्का पहना हुआ था। मैं उसको इग्नोर करके आंटी को ढूंढने लग गया। इस लड़की पर फिर से नज़र पड़ी तो मैं देखता रह गया कि एक बंदा उनके साथ खड़ा था और उसे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने सोचा मोबाइल निकालकर फ़ोटो बनाते हैं। मैंने मोबाइल निकाला और कैमरा सेट करने में मसरूफ़ था कि अचानक ऊपर देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से मोबाइल पीछे हटाया और जेब में डाल लिया। उस लड़की को आटा मिला और वो जाने लगी तो मुझे आइडिया आ गया। आंटी के बारे में मैं पूछने लगा। वो आटा निकालकर अकेली लेकर जा रही थी। मैं उसके साथ साथ चलने लगा और उसने मेरी तरफ देखा और चुप करके आगे चल पड़ी। मैं पीछे गया, बाइक निकाली और उसके साथ बाइक चलाने लगा। मैंने उसके आगे बाइक रोकी और कहा कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तो उसने कहा आगे वाली गली में मुड़ जाओ, मैं वहाँ आती हूँ। मैंने बाइक निकाली और अगली गली में चला गया। वो थोड़ी आराम से आई और आटा मेरे पीछे रखकर चुप करके बैठ गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक एक रोड की तरफ चला दी। मैंने कहा डरो नहीं, मुझे तुमसे कोई बड़ी बात नहीं पूछनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी अम्मी से मिलना है। तो लड़की बोली मेरी अम्मी? मैंने कहा हाँ, वही जो कल तुम्हारे साथ थी। तो लड़की बोली ओ प्लीज़ मेरी सास को कुछ मत बताना कि मैं इस लड़के से बात कर रही थी। मैंने कहा वो तुम्हारी सास है? तो लड़की बोली जी हाँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं इन्हें कुछ बताऊंगा। लड़की ने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ आज तुम्हारी सास क्यों नहीं आई? लड़की बोली उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आई। तो मैं बोला तुम्हारा ससुर कहाँ है? लड़की बोली जी वो तो अमान होते हैं और साल बाद आते हैं। फिर मैंने कहा और तुम्हारा शौहर कहाँ होता है? वो लड़की बोली वो जी कराची होते हैं, वहाँ काम करते हैं। अच्छा अब मेहरबानी करें, आपने जैसे जैसे पूछा मैंने सब सच सच बताया। अब मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रही है। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लड़की बोली जिस गली से मैं आपके साथ बैठी हूँ उसे आगे तीसरी गली में मेरा घर है। अब मुझे मेहरबानी करके बस इसी गली में छोड़ दें। फिर मैंने कहा चुप करके बैठो और अपना घर दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आता हूँ। वो मुझे घर का रास्ता बताने लगी और मैं उसको उसके घर के बाहर छोड़कर आ गया और इसे कह दिया कि कोई भी अगर मेरा पूछे तो बता देना कि मैं तुम्हारी सास का भांजा हूँ, और अगर सास पूछे तो इसे बताना कि कल सब्ज़ मंडी में मिला था और मैं कल तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगा। ये लड़की परेशान खड़ी थी कि क्या वाकई ये मेरी सास का भांजा है, मगर मैं इसे इन्हीं सोचों में छोड़कर वहाँ से निकल आया। इस प्यारी लड़की को छोड़कर निकला और अपने हजाम के पास पहुँच गया। हजाम को कहा कि यार कटिंग वगैरह ही कर दे। काफ़ी अरसे से एक ही हजाम से बाल बनवा रहा था तो वो तकरीबन दोस्त जैसा ट्रीट करता था। हजाम कहने लगा आज कैसे आना हो गया? मैंने कहा यार वो सब्जी लेनी थी तो आ गया। तो हजाम बोला तो ली नहीं, जाते हुए लेगा। मैंने कहा यार अभी तो साफ भी नहीं मिली, सोच रहा हूँ बस कटिंग करवा कर चला जाऊँ, फिर कभी ले लूँगा। फिर कुछ देर में मेरी कटिंग हो गई और मैं वहाँ से निकल गया और रास्ते में मुझे एक लड़की नज़र आई रिक्शे पर। वो अकेली पीछे को बैठी हुई थी, मैं भी इस रिक्शे के पीछे चल रहा था। वो लड़की कभी नीचे देखती कभी मुझे देखती और इतने में रिक्शा मुड़ गया और मैं सुकून से घर पहुंच गया। तकरीबन 1 बज रहा था। मैं नहाया, खाना खाया और सो गया और मेरी आंखें शाम में खुली। मुंह हाथ धोया और जिगरी दोस्त की तरफ निकल गया। वहाँ वो अपने ऑफिस में कुछ मसरूफ़ बैठा था। मैं चुप करके बैठा सोचूं में गुम हो गया। अचानक मुझे याद आया कि घर वालों ने कोई काम ढूंढने का भी जिम्मा लगाया था। तो मैंने दोस्तों को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए कि यार कोई अच्छा सा रात का ऑनलाइन काम ही बता दो। एक दोस्त ने कहा कि कॉल सेंटर कर लें। मुझे उसका आइडिया पसंद आया तो इसे कहा चल चलते हैं जहां तू कह रहा है। उसने कहा ले, मैं तो अपने राब्ते वाली जगह पर जाऊंगा लेकिन इंटरव्यू खुद पास करना पड़ेगा। दोस्त ने कहा यार तो कल की तैयारी रख। तो मैंने कहा कल क्यों, आज ही चलते हैं।
मेरा दोस्त बोला, ओ भाई उनको भी आराम करने दे, कॉल सेंटर से हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। तो मैंने कहा अच्छा यार, लड़कियां तो नहीं होती ना? फिर मेरे दोस्त ने कहा हाँ लड़कियां होती हैं, मगर अलग कमरे में होती हैं। हाँ किचन में और बाहर आमना सामना हो जाता है। 2 से बात ख़त्म की तो उधर जिगरी यार हारिस भी फ्री हो गया और उसको लेकर मैं चला गया वज़ीर आज़म पार्क। वहाँ इन दिनों कुछ महफिलें लगी थी, मतलब मेले वगैरह, तो रश काफ़ी था। हम जैसे ही पहुँचे रश की वजह से पुलिस वालों ने कहा कि सब इधर बड़े दरवाजे से आ जाएं, और बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। सबको जल्दी थी, इसी जल्दी में हम भी अंदर दाखिल हो गए। हम गेट के करीब ही खड़े थे कि पुलिस वालों ने पार्क का बड़ा गेट फिर से बंद कर दिया और फिर सब छोटे गेट से आना शुरू हो गए। इधर पुलिस वाला छोटे गेट पर खड़ा लड़कों को कह रहा था कि फैमिली आ सकती है, अकेले अंदर नहीं आ सकते। हम दोनों तो खुशी हो गए क्योंकि हम उन लड़कियों के साथ अंदर आए थे जिसे हम ही इनकी फैमिली हों। मैं दोस्त को लेकर कंसल्ट वाली साइड पर चला गया। वहाँ मैंने सबा आपा आंटी देखी जिसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। मैं आंटी की साइड जाकर खड़ा हो गया और आंटी को सलाम किया। फिर मैंने कहा मैम आपने अपना नाम नहीं बताया? तो आंटी बोली मेरा नाम सबा है। मैंने कहा शुक्रिया सबा आपा। और इन मोहतरमा का तारफ तो आंटी बोली ये मेरी बहुत ही प्यारी देवरानी है। मैंने कहा प्यारी तो है। इस बात पर वो दूसरी आंटी हंस पड़ी। सबा आपा शक्ल से ही काफ़ी अच्छी लगती थी। फिर सबा आपा बोली अच्छा अभी के लिए बहुत बातें हो गई, बच्चियां इंतज़ार कर रही होंगी, अब हम चलते हैं। मैंने मुस्कुराकर इन्हें अलविदा कहा और हारिस की तरफ देखा जो हैरत से मेरा मुंह तक रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा चल यार अब ऑनलाइन काम भी ढूंढना है और कल कॉलेज में अपनी फिजिक्स वाली मैडम का लेक्चर भी तो लेना है। हम दोनों हंसते हुए पार्क से बाहर निकल आए और फैसलाबाद की रोशन सड़कों पर बाइक दौड़ाते हुए मुझे लगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और मुहिम जुई से भरपूर हो गई है। तो दोस्तों ये थी ज़ैन की फैसलाबाद की चौकों, पार्कों और गलियों में घूमी हुई एक यादगार दास्तान। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी हमेशा गैर मुतवक्को होती है। कभी कभी जिस रास्ते पर हम किसी और की तलाश में निकलते हैं, किस्मत हमें किसी बिल्कुल ही अनजान मोड़ पर खड़ा कर देती है। अगर आपको ज़ैन की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।